Here we are. Welcome, guys. This is Engineer Wakas Ahmed, 25th May 2025, as per UAE time, 8:30 p.m. right now, and we are going to start our live session. In this session, you are going to learn many amazing things, but first liner, learning skill in 3 months can secure your next 30 years. Can you believe it? हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजों को इग्नोर करते हैं, बट टुडेज वेबिनार इज गोइंग टू सिक्योर योर नेक्स्ट 30 years. क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हाई अर्निंग जॉब कैरियर, प्रोफेशनल जॉब कैरियर. You understand? So stay till end of today's webinar and give me opportunity to change your mindset, to get ready that mindset for more skills learning, right? So हाउ मैनी ऑफ यू आर फेड अप? कितने लोग फेड अप हो चुके हैं, डेली जॉब अप्लाई कर रहे हैं बट देर इज नो रिस्पॉन्स? आई नीड यू पीपल टू राइट डाउन इन देयर कमेंट एरिया, इन देयर चैट बॉक्स एरिया. प्लीज, एवरीबडी शुड राइट देयर. इफ यू आर सेम पर्सन, यार मैं हर जगह अप्लाई कर रहा हूं, मुझे कहीं से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, देन इट इज द टाइम यू शुड शेयर योर फीलिंग विद मी, प्लीज. यस. Okay, then it is the right place to join at this time. So let me share with you what is the reason we are applying other companies low salary. I want you to write the reason. That is what ये थॉट मेरे जहन में आया. आपके जहन में क्या है? इनमें से लो सैलरी था, स्लो ग्रोथ, नो सिक्योर जॉब कैरियर. माइट बी पॉसिबल वन ऑफ दोज रीजंस आर गोइंग टू पुश यू, आर गोइंग टू फोर्स यू कि भैया टाइम पे नौकरी चेंज कर लेते हैं, कंपनी चेंज कर लेते हैं. राइट? दैट इज व्हाई यू आर अप्लाइंग इन अदर कंपनीज. इज इट ट्रू? You have to be very interactive with me. Thank you, because it is going to motivate with me. I'm also going to reply your comments and your chat box messages as well. Don't worry. So stay with me till end of this video. I'm going to share with you that how to move in Gulf region, because my philosophy, an engineer in India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, any South Asian country, right? They are not getting worthy salaries. I know that. Very low salaries. So our specific special place is Gulf region, UAE, Saudi Arab, Qatar, Oman. I will be teaching you all of that. Impact of skills on career growth. Why? Because I told you already कि भैया 3 महीने लगा लो, 30 साल बच जाएंगे. That is what the impact of skills. Then how Primavera P6 is going to get you many job opportunities in Gulf region. जॉब हंटिंग का प्लान क्या है, और प्लानिंग इंजीनियर्स की गल्फ रीजन में क्या क्या सैलरीज हैं. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल इन टुडेज सेशन. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. First of all, I will be explaining 40 minutes and then 20 minutes for question answers. So, the first thing, common engineering career challenges. हमारे बहुत सारे लोग हैं जो जॉबलेस हैं, फ्रेश इंजीनियर्स हैं, दे आर अप्लाइंग हेयर एंड देयर बट नो जॉब. व्हाई? क्यों जॉब नहीं मिलती? कहीं पे भी अप्लाई करते हैं, पीपल आर आस्किंग फॉर द एक्सपीरियंस. उल्टी गंगा बह रही है. इनको जॉब देनी चाहिए ताकि फ्रेशर्स के पास एक्सपीरियंस आइए, बट दे आर डिमांडिंग फॉर द experience from the freshers. That is the first challenge. The second one, the mid-career level engineers, the engineers who are having 3 to 4 years of experience, they are in the peak of their job career. They are expecting good salaries, but hardly they are getting like 80,000 per month with this experience, right? So they are very frustrated. So I suggest this category, that you need to upskill yourself, learn some skill so that you can move to Gulf region. Why? Because in Gulf, you can get 10 times better salary. Yes, I can guarantee you, but in only one condition. If you are carrying good demanding skills like Primavera P6, then you will be getting this much, like 80,000 in Pakistan, India, maybe 800,000 in UAE and Saudi Arab, because they are really giving values to the skilled engineers. Please don't make lines. Thank you very much. And the next is experience level engineers. These engineers are looking for managerial jobs. So I recommend them to learn project planning skills so that they can. अब आज के दौर में never ever go for the number of years of experience. Never. अगर आपके पास 10 साल का experience है and there is no skill, you are not worthy. But if you have 2 years of experience, there are two skills. Skills क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं. Then you are worthy. Then you will be valued, right?
और साइट इंजीनियर कौन कौन है विच यू वांट टू मूव टू द, मुझे कमेंट्स के अंदर लिख के बताएं प्लीज जल्दी से, कौन कौन से साइट इंजीनियर्स अभी देख रहे हैं, प्लीज राइट देयर। आर यू ट्राइंग टू चेंज योर जॉब करियर? मतलब यार मुझे हेड ऑफिस में बैठना है, मुझे भी कॉफी पीनी है, मुझे भी एसी के अंदर बैठना है, मुझे भी सूट लगा के बैठना है, मीटिंग का हिस्सा बनना है, क्लाइंट के साथ बात करनी है, कंसल्टेंट की फीलिंग लेनी है, मुझे भी एक मतलब ना एक इन्फ्लुएंसर जो होता है ना कंपनी के अंदर, लाइक उस तरह का, मतलब मुझसे भी कंपनी के मैनेजर्स पूछें, राइट? ऐसा होता है ना कि मट्टी खानी है, रेत खानी है, साइड पे धूप खानी है, मतलब सैलरी का कोई डिफरेंस ही नहीं है भाई, पता ही नहीं है कि इंक्रीमेंट कब लगेगा, राइट? सो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस, वट विच वन यू आर at this moment you are facing, just write in the comment area. And then, who is satisfied with current job career, please write down there in the comment area please. आप लोग जितने भी अभी मुझे लाइव सेशन में देख रहे हो, जितने भी बाद में मुझे देखेंगे रिकॉर्डेड सेशन को, प्लीज अगर आपको लगता है कि यार मैं अपने जॉब कैरियर से सेटिस्फाइड नहीं हूं, आप कमेंट में ये भी लिख सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, टू मेक इट मोर इंटरेक्टिव, बिकॉज बाद में मैं आके आप लोगों की इन चीजों का जवाब दूंगा। डोंट वरी, प्लीज राइट देयर, आर यू सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, ओके, देयर आर मेनी पीपल हु आर गोइंग टू राइट देयर, दिल की बात लिखनी है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दिस सर्वे जो चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं उन्हीं चीजों के ऊपर मेरा यह वेबिनार चलेगा, प्लीज। ओके जी, ओके, थैंक यू। So, you know the reasons? Now I'm going to tell you the reason why you are not satisfied with current job career. पहले तो आप reasons लिखे ना कमेंट में, क्या reasons हैं? आप क्या समझते हैं कि आपने जो अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद जो कर लेना था, you could not get at that position. What was the reason? अच्छा ठीक है, मुझे पता है आप लोगों में से सबने बता दिया मैं सेटिस्फाइड हूं, अभी अगली गेम मेरी शुरू होगी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर दिस स्लाइड, बट आई जस्ट वांट टू चेक योर माइंड, आप किस लेवल पे जाके सोच रहे हैं, यू नो द रीजन प्लीज। राहील असगरी सिंह, शुक्र अदा करना चाहिए जहां भी है, बहुत ठंडी सोच है राहील, मेरे भाई, बहुत ठंडी सोच है, ठीक है। महमूदुल हसन, लो सैलरी नो ग्रोथ, ओके, लैक ऑफ स्किल्स, ये है राहील, एक स्टूडेंट है, वो कह रहे हैं नहीं जी शुक्र अदा करना चाहिए, हाँ शुक्र अदा करो भाई, यू कैन स्टे देयर नो प्रॉब्लम, राइट? ये ठंडे बंदे की निशानी होती है, आपको वो है ना कि और भी जहां है, कोशिश करो, हिम्मत करो, आप थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो तो बहुत कुछ हो सकता है। एनी हो, द रीजंस आर लैक ऑफ अवेयरनेस। एक ही कंपनी के अंदर देखो दो सिविल इंजीनियर्स भी काम कर रहे होते हैं, आप यूनिवर्सिटी की मिसाल ले लो कि एक ही कमरे के अंदर 200 सिविल इंजीनियर्स थे, 200 मैकेनिकल इंजीनियर्स थे, 200 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स थे। आफ्टर 5 years इफ यू कैन एनालाइज अराउंड योर सेल्फ कि भैया कौन सा इंजीनियर किस जगह पे है, आपकी सैलरी के अंदर बहुत डिफरेंस होता है, ऐसा ही है कि नहीं? 200 इंजीनियर जो एक, द पीपल हु आर गेटिंग द सेम डिग्री आफ्टर 5 years, आफ्टर 2 years, दे आर गेटिंग डिफरेंट। एक बंदा आज भी 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, एक बंदा 5 साल के बाद 10 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रीजन? अवेयरनेस। व्हाट डज मीन बाय अवेयरनेस? आपको पता होना चाहिए व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आई नीड टू अंडरस्टैंड, राइट? लैक ऑफ स्किल्स इज डायरेक्टली लीडिंग टुवर्ड्स द लैक ऑफ स्किल्स। आपको 1 साल के बाद कौन कौन से स्किल सीखने, फिर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद किस तरीके से कैरियर ग्रोथ करनी है, किस तरह की कंपनीज के अंदर अप्लाई करना है, किस तरीके से टाइम टू टाइम अपने प्रोफाइल को चेंज करना है, these all things are going to help you to grade your career, right? So इन चीजों के ऊपर बात करने हैं, I will be sharing my story as well. I was graduated back in 2010 and I was thanking to God that I am graduated. Nobody give me job opportunity. Raheel, listen it. I was jobless till 2011, right? 2011 tak I was jobless. Then I suddenly started one job in Pakistan for 4 months, which was without any money, without any salary, which was around my city. एक कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट लग रहा था नियर टू माय एरिया एंड आई स्टार्टेड विजिट दैट एरिया ड्यू टू अंडरस्टैंडिंग कि यार वहां पे जाके कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, यू अंडरस्टैंड ना? एंड आफ्टर दैट आई गॉट सम प्रोफेशनल लर्निंग कि मुझे यहाँ पे तो चांस नहीं मिल रहा, आई शुड स्पेंड सम मनी एंड गेट सम विजिट वीजा, एंड आई लैंडेड इन अबू धाबी। आफ्टर हैविंग big struggle, I got my first job as a fresher in Abu Dhabi in oil and gas sector. Right after 1 year, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर मेरी जॉब हो गई एक बड़ी छोटी सी पोजीशन पे।
लाइक आप समझ लो टेक्नीशियन के तौर पे, ठीक है। अब टेक्नीशियन, एक इंजीनियर को टेक्नीशियन लेवल पे जॉब मिले, आई वॉज नॉट, मैं भी चाहता तो वहां पे शुक्र अदा कर सकता था। आप शुरू में बड़ा शुक्र अदा करते हो, ठीक है यार मैं, लेकिन जब आप काम करते हो, इर्द गिर्द देखते हो अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को, अपने यूनिवर्सिटी फेलोज को, हु आर गेटिंग वेरी गुड सैलरी, हु आर ग्रोइंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, देन आई वाज लाइक मुझे भी ग्रो करना है। सो मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर स्किल्स को ऐड करना शुरू किया। आई एडेड प्लानिंग स्किल्स लाइक प्राइमरा P6, ठीक है। And I was hired in Saudi Arabia after 1 year on a planning engineer, and there was a hell of difference in my salary. Whatever I was getting at this time, like 2,500 dirhams, I was hired at 5,000 dirhams. And then I came to know that how much growth in this job career. That is my story. Adding up skills, trying to learn for more for every day, making it better is going to give you the satisfaction. आपके हाथ में, आप लर्निंग को कंटिन्यूसली अपनी आदत बनाएं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे यू इन टूडेज सेशन। सो मेरी स्टोरी से क्या लर्निंग है, कहीं पे ब्रेक नहीं लगानी। लर्निंग में ब्रेक नहीं लगनी चाहिए मेरे भाई। लर्निंग में कहीं पे ब्रेक लग गई तो आपकी ग्रोथ में ब्रेक लग जाएगी। यू अंडरस्टैंड? So what is I'm going to share. So I have been working in oil and gas sector. I have been working in plant shutdown industry, construction industry, MEP projects, airport construction projects. That is dynamic experience I am going to share with you people के इस industry के अंदर either you are a civil engineer, electrical, mechanical, chemical, industrial, whatever engineer you are, you can join this job career, right, as a planning engineer. So आप why you should लर्न दिस स्किल सेट, ये जो स्किल सेट है प्राइमरी P6 या प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का, क्यों सीखना चाहिए? बहुत सारे लोग हैं, 100, more than 100 people has joined this session. Many questions I know that right now is in your mindset, right? कि क्यों सीखना चाहिए भाई, हम आसानी से साइट इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं, कोई डिजाइन का बंदा है, कोई QA QC का बंदा है, ऐसा ही है, क्यों करना चाहिए? आई एम गोइंग टू गिव यू द प्रूफ। सो हियर वी आर, a lot of people जो जो सिविल इंजीनियर्स हैं, इफ यू आर वर्किंग इन वन ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स, अगर आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा आई एम वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। इफ यू आर वर्किंग ऑन ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, टनल्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर, रोड्स, हाईवेज, मेट्रो, yes, you can do this skill. Why and how, I will be explaining. First of all, I am going लेयर बाय लेयर, मैं हर एक डिसिप्लिन को, हर एक डिपार्टमेंट को एड्रेस करना चाहता हूं, कहीं डाउट ना रह जाए, राइट? अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, किस फील्ड में काम कर रहे हैं, ये आप लाजमी चैट बॉक्स में लिखिएगा। देन दिस प्लानिंग इंजीनियरिंग इज फॉर यू माय फ्रेंड। व्हाई एंड हाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग। लेट मी address to another category who are mechanical engineers. If you are a mechanical engineer, you might be working on MEP HVAC projects, oil and gas projects, piping projects, power plant projects, automobile industry, manufacturing, material handling, boiler and so on. आप शायद प्रोजेक्ट साइड पे काम कर रहे हैं, मेंटेनेंस साइड पे काम कर रहे हैं, बट इफ यू आर वर्किंग वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट, इसके अलावा कुछ अगर मैं प्रोजेक्ट ऐड नहीं कर सका, आई एम सॉरी, बट आई मीन कि किसी भी मैकेनिकल फील्ड में भी अगर आप काम कर रहे हैं, प्लानिंग इंजीनियरिंग इज बेस्ट फॉर यू। व्हाई एंड हाउ? लेट मी एड्रेस एन अदर डिसिप्लिन विच इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. So if you are electrical engineer and you are part of in today's webinar, you might be working on power generation plants, you might be working on transmission lines projects, industrial electrical installations, smart grid projects, and if you are a chemical engineer, let me address all of these engineers who are working on such kind of projects, right? आप सब लोग प्लानिंग इंजीनियर बन सकते हो। और क्यों बनना चाहिए, पहले हम देखते हैं, पहले क्यों बनना चाहिए। क्यों? Because you people are not satisfied with your site engineering, with your low career growth. Why you should become a planning engineer? You know why? Because planning engineers are going to decide कि यार किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस किन चीजों पे डिपेंड कर रही होती है। ये चीज समझे जरा। आप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे, रोड के प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, ऑयल एंड गैस, ट्रांसमिशन लाइन, हाइड्रोलिक का प्रोजेक्ट है आपका, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई फैक्ट्री बनानी, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट इंडस्ट्री, वट एवर, आपका कोई भी प्रोजेक्ट शुरू से लेके एंड तक जब जाता है, हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है? इफ योर प्रोजेक्ट इज डिलीवर्ड इन टाइम, एस्टिमेट किया गया योर प्रोजेक्ट,
शुरू में होता है ना, 1 साल के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। इफ योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद इन दैट 1 ईयर और 2 इयर्स, जो भी एस्टिमेटेड टाइम था, was that project delivered on time? That is the first success criteria. Okay. Then the second one, cost management. How much cost was estimated? $1 million. Was that project completed in that cost? Okay, then it's okay. अगर आपको पता लगे यार $1.2 million, that is not successful project. You understand? If you have any question, please write down in the chat box area, please. And then प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पूरी की है। अगर मैंने किसी को अपना घर बनाने का दिया और मैंने कहा यार इस तरह की टाइल्स लगनी चाहिए, वो बंदा कहना मैं इससे भी अच्छी लगाऊंगा। नो माय फ्रेंड, यू हैव टू फुलफिल माय रिक्वायरमेंट्स। यू अंडरस्टैंड? सो टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू डिफाइन योर प्रोजेक्ट सक्सेस। अब ये कैसे पूरी होती हैं, ये मैं सारी चीजें किस तरफ लेके जा रहा हूं। सबसे पहले आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, इस सक्सेस क्राइटेरिया को पूरा करना है, यू नीड टू मेक योर प्रोजेक्ट शेड्यूल, या स्केड्यूल भी बोलते हैं इसको। आप में से कितने लोगों ने प्रोजेक्ट शेड्यूल देखा है, जिसको हम वर्क प्रोग्राम भी बोलते हैं? जो भी हमने काम करना उसका एक प्रोग्राम बनता है, वर्क प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है, प्रोजेक्ट शेड्यूल भी बोलते हैं इसको। इफ आई कैन शेयर विद यू प्राइमरा P6 डैशबोर्ड, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये हमारा वर्क प्रोग्राम है, दिस इज प्राइमरा P6। मुझे बताइएगा, अगर आप में से किसी ने पहले प्राइमरा P6 के ऊपर इस शेड्यूल को देखा, ये देखें, आई विल बी गाइडिंग यू वन बाय वन। नाउ यू कैन फाइंड हियर ऑन दिस साइड एरिया, this is this side, you can see the detail of work which is need to be done on the site area. लाइक ये हेड ऑफिस के अंदर काम होंगे डिजाइनिंग के, ये फाउंडेशन साइट के ऊपर जो जो काम होना है, इट इज डिटेल्ड ओवर देयर। आपकी साइट प्रिपरेशन होनी है, एक्सकवेशन होनी है, इंस्टॉलेशन है, इलेक्ट्रिकल की फुटिंग, वेल्व, स्लैब, एंड देन सब स्ट्रक्चर वर्क्स, देन मैकेनिकल वर्क्स, देन एलिवेटर। एंड इफ यू कैन सी दैट वन बाय वन एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर, राइट? एवरी सिंगल स्कोप ऑफ वर्क, जो भी साइट पे काम करना है, बड़ी तरतीब से लिखा गया है। What is the detail? This is the complete document is called project schedule. Every consultant, client, site के लोग, inspection के लोग, meeting, यही document is going to be part of that. अगर ये document होगा, if that document is there, only in that situation all the teams can perform a team work, right? सबको पता होगा किस डेट को क्या काम होना है। प्रोजेक्ट स्कोप को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट स्कोप ही है, द वर्क itself is called project scope। ये इंस्टॉलेशन ऑफ डक्ट्स हैं, सेट मतलब इस काम के बाद कौन सा काम, ये सब का सब क्या है? प्रोजेक्ट स्कोप है। ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? प्रोजेक्ट शेड्यूल। प्रोजेक्ट लॉजिक, व्हाट डज मीन बाय लॉजिक? विच वन विल बी परफॉर्म फर्स्ट, पहला काम कौन सा होगा, एंड देन व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई हैव टू परफॉर्म। सी, दिस इज द लॉजिक। ये आपको दूसरी साइड पे जो चीज नजर आ रही है, इफ आई कैन शेयर विद यू, ये देखें, ये लॉजिक है। ये आपके बार्स नजर आ रहे हैं, ये रिलेशनशिप्स हैं। पहले ये देखें, ये काम 14 जनवरी को खत्म होगा, फिर अगला काम स्टार्ट होना है, ये 30 अगस्त को खत्म होगा, ये आगे काम स्टार्ट होगा, इसी तरीके से ये 25 मार्च को खत्म होगा। ये एवरीथिंग इज डिफाइंड, दिस इज द लॉजिक, राइट? प्रोजेक्ट शेड्यूल इज अब्सॉर्बिंग एवरी काइंड ऑफ थिंग, यू अंडरस्टैंड? देन कॉस्ट मैनेजमेंट, हर एक्टिविटी के आगे, यू कैन सी दैट हर एक्टिविटी के आगे ये सारा कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन। $10, $54,000, right? So this is called cost management. This project schedule having all of this information. Material and resource management, हमें कौन सा काम करना है? इंस्टॉलेशन ऑफ डक्ट्स करनी है, तो इसके अंदर मुझे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, राइट? अगर मुझे ये अब कॉन्ट्रैक्ट, ये देखे इस तरह से कनेक्ट इक्विपमेंट, मुझे किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए? मुझे डिलीवरी के लिए, ये देखें जरा, ये देखें मुझे किस तरह के रिसोर्स, उनकी कॉस्ट देख लें। ये सारी कॉस्ट जो $2,406 आ रही है, वो इस सारी कॉस्ट को एड अप करके आ रही है। उसका मजीद ब्रेकडाउन दिया गया है, हाउ कारपेंटर विल बी कॉस्टेड, हाउ लेबर, हाउ पेंटर विल बी कॉस्टेड, राइट? So everything is there, logic is there, cost management is there, resource management is there, time management is there, scope management is there, procurement management is there, right? So project schedule is carrying each and everything। फिर इसको जब हम किसी टीम के सामने प्रेजेंट करेंगे, इट वुड बी कॉल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, और उसको हम ट्रैकिंग बोलते हैं। सो ये सारी की सारी चीजें क्या है? दिस इज द जॉब रोल फॉर प्लानिंग इंजीनियर। क्या है ये?
ये जॉब रोल है, ये प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जब आप प्राइमरा P6 इज अ टूल, प्राइमरा P6 पे काम करना आता है, यू हैव टू प्रिपेयर दिस वन बाय डूइंग दीज ऑल थिंग्स: स्कोप मैनेजमेंट, लॉजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग मैनेजमेंट, ट्रैकिंग एंड ऑल दैट. This is the job role of planning engineer. Once you are going to perform all of this work, you can successfully complete your project within time, within cost, within requirements, and at the end of your project, either that is building, road, MEP, pipeline, oil and gas, hydraulic, transmission lines, petrochemical industry, आपका project successful है. So किस चीज के हाथों में है ये चीज? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बोलते हैं इसको, ये पूरी की पूरी. और कौन करता है इसको? प्लानिंग इंजीनियर. और किस पे करता है? प्राइमरा P6, राइट. और क्यों करता है? ताकि प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिलीवर हो सके. यू अंडरस्टैंड? ये यहां तक आपको बात समझ आ गई? व्हाई यू नीड टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर. अब यार ये प्लानिंग इंजीनियर काम की बड़ी चीज है. ये क्लाइंट और कंसल्टेंट में इसकी बहुत बड़ी वर्थ है. If you are a site engineer, you will be, wandering here and there on the site area with contractor with low salary job. अगर आप डिजाइन इंजीनियर हो, QA QC हो, मैं ये कहता हूं कि every engineer, either you are a fresher, mid career, senior level engineer, आप सिविल, इलेक्ट्रिक, every engineer one time need to understand project management implementation on your project, जिससे आपको क्लाइंट और कंसल्टेंट के कामों की समझ आती है, किस तरीके से प्रोजेक्ट को मैनेज करना है. You understand? So please let me know who want to become a planning engineer in chat box or in comment area. If you want to become, please write there in planning engineering. Right. Thank you. So, Primavera P6 की जो एप्लीकेशन है ना, वो दो तरीकों से है. एक आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या ईपीसी प्लानिंग. ऑयल एंड गैस फील्ड की बात करेंगे तो ईपीसी प्लानिंग है. और अगर हम रोड बिल्डिंग की बात करेंगे तो उसको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की बात करेंगे. पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है. कितने लोग ऑयल एंड गैस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं? प्लीज, ऑयल एंड गैस फील्ड को ज्वाइन करना है. मैं उन लोगों को ये बताता हूं कि भैया आप आंखें बंद करके दुआ करते रहेंगे, आपकी बहुत अच्छी किस्मत है ना, देन 1% आउट ऑफ 100 कैन गेट दैट अपॉर्चुनिटी. क्योंकि ऑयल एंड गैस फील्ड बहुत छोटी है, बट इस तरह के स्किल सीख लेंगे तो यू विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. तो प्राइमरा P6 की एप्लीकेशन इन वन वे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के साथ है, या ईपीसी प्लानिंग के साथ ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स पे है. और दूसरी चीज है, अगर आप, कितने लोग हैं जी मेंटेनेंस के अंदर जो काम कर रहे हैं, जो इस वेबिनार का हिस्सा है, कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा. लिखें जरा कमेंट्स के अंदर, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग एज अ मेंटेनेंस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, रिफाइनरीज के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर. तो वो लोग जानते होंगे शट डाउन के अंदर जब आपकी मेंटेनेंस, आई विल बी एक्सप्लेनिंग, डोंट वरी, बोथ थिंग्स. ये कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, डोंट वरी. शट डाउन मैनेजमेंट बोलते हैं. वन बाय वन देखते हैं. सो ये है हमारा ईपीसी प्लानिंग का फ्रेमवर्क विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. दिस स्लाइड इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट या ऑयल एंड गैस फील्ड के अंदर किस तरीके से प्राइमरा P6 को यूज करते हैं, पूरा प्रोजेक्ट कैसे रेडी होता है. तो इसको, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ना, हम 5 फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं: इनिशिएट फेज, प्लानिंग फेज, एंड देन एग्जीक्यूशन फेज, मॉनिटर एंड कंट्रोल, एंड क्लोजिंग फेज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस एट दिस टाइम. इनिशिएट फेज में योर बिल्डिंग प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट है, आपका प्रोजेक्ट पैदा कैसे होता है, शुरुआत कैसे होती है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस का, हाउ दिस प्रोजेक्ट इज गोइंग टू स्टार्ट. सो फर्स्ट थिंग इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट. सबसे पहले मेरे भाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है. इस फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये डिफाइन किया जाता है, बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट. बिल्डिंग है, बट व्हाट आर देयर ऑब्जेक्टिव्स, पर्पस क्या है, डेफिनेशन क्या है, माइलस्टोन्स क्या है. उसके फिजिबिलिटी रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन की जाती हैं. उसके पर्पसेस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारा एम क्या है, राइट. एंड देन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कल को हम ये प्रोजेक्ट बनाते हैं, हमें आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कॉस्ट परस्पेक्टिव के लिहाज से, टेक्निकल वायबिलिटी क्या है, टेक्निकली हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, अगर हम रोड बना रहे हैं तो कौन सा रूट ठीक रहेगा, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, किस डाया की पाइपलाइन यूज करेंगे, एमईपी का प्रोजेक्ट है तो किस तरीके से हमें उसको लेके चलना है, राइट. सो ये सबसे पहले आपकी ये रिपोर्ट तैयार होती है. वंस दिस रिपोर्ट इज डन, देन फीड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन. अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट को लेके चल रहे हो, बेसिक डिजाइन, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, फीड फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन. क्या मतलब इसका? भैया ये रिपोर्ट आपकी अप्रूव होगी. वंस दिस रिपोर्ट इज डन, अप्रूव्ड,
then it will be proceeded towards the preparation of your basic design. Your team is going to survey, delivering you the coordinates, and then you are going to prepare basic design or front end engineering design. What is inside this document? डिजाइन पैकेजेस, लाइक आपकी बिल्डिंग बनेगी, उसमें सिविल का काम है, एमईपी का काम है, रोड का प्रोजेक्ट है आपकी, वहां पे रोड क्रॉस सेक्शन ड्राइंग्स बनेगी, ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, सिविल की ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ऑल दैट, राइट? आपका वो ये देखिए, ये सारी ड्राइंग्स आपकी बनेगी, स्ट्रक्चरल पैकेजेस बनेंगे, पाइपिंग के पैकेजेस, फैब्रिकेशन ड्राइंग्स बेसिक लेवल की, प्रोक्योरमेंट इनिशियल प्लान्स बनेंगे, राइट? फीड में ऑयल एंड गैस की बात कर रहा हूं। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? कहां से मटेरियल लेना है, कौन देगा हमें, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स होते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर, सारा कुछ कि क्या क्या हमारे माइलस्टोन्स है मेरे भाई। यू अंडरस्टैंड? इनिशिएट फेज के अंदर ये सारी चीजें। देन प्लानिंग फेज। once your planning phase is going to start, this is the second phase. Your detailed engineering design will be started. यहां पे आपका बेसिक डिजाइन, on the basis of this basic design, your designing engineer are going to start this detailed engineering designs. यानी कि आपने complete construction drawing, complete piping drawings, complete fabrication drawings are going to be compiled. And then, estimation will be started. इस डिजाइन से you are going to start estimation. BOQ बनेगा, bill of quantity, bill of material, contract, the legal document of your project will be compiled. और फिर इसके साथ साथ procurement plans, लाइक यहां पे हमारे पास बल्क आइटम्स होती हैं, लॉन्ग लीड आइटम्स के प्लान्स तैयार किए जाते हैं, कब ऑर्डर करना है, राइट? आउटसोर्सिंग करनी होती है, आपको स्टील चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सॉइल चाहिए, सैंड चाहिए, क्रेन चाहिए, साइट इंजीनियर चाहिए, यू नीड कैमरास, यू नीड asphalt, you need MEP items, procurement plans, right? And then construction schedule बनाएंगे, दैट इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, प्रोजेक्ट शेड्यूल। उसके अंदर आपकी स्कोप मैनेजमेंट होती है, जो थोड़ी देर पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा था प्राइमरी P6 में। शेड्यूल बेसलाइन होता है, टाइम मैनेजमेंट प्लान होता है, कॉस्ट बेसलाइन होता है, कब कब कितने पैसे चाहिए आपको, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान होता है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर वर्क, कि यार इस महीने हमने ये काम करना है, इस महीने, उसी के हिसाब से आपका कॉस्ट प्लान बनेगा, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लान बनेगा, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लान बनेगा, एंड ऑल दिस डॉक्यूमेंट विल बी अलाइंड, this construction schedule with procurement plan and with designing plan. Everything will be integrated inside the planning phase. And then the third phase will be started, which is called execution phase. Inside this execution phase, your team is going to mobilize on the site area. आप साइट पे मोबिलाइज कर लेते हो, जहां पे बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगा, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, एंड यू आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस प्लान विच यू हैव कंपाइल्ड इनसाइड द प्लानिंग फेज, एंड यू विल बी इंप्लीमेंटिंग इनसाइड द एग्जीक्यूशन फेज। प्रैक्टिकल काम स्टार्ट हो गया, दिस इज द थर्ड फेज। एंड द फोर्थ फेज इज कॉल्ड मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज। These both phases are going parallel to each other, execution phase and monitoring and control phase. As soon as your execution phase will be started, site पे practically काम start हो गया, your monitoring will be started. Believe me, क्या होता है monitoring? आपके काम को देखना, जो भी काम साइट पे हो रहा है, मॉनिटर करना, कितना काम किया, राइट? उसको डॉक्यूमेंट करना, आज इतनी वेल्डिंग होगी, आज इतनी एक्सकवेशन होगी, मॉनिटरिंग, एंड डॉक्यूमेंट दैट वर्क, और उसको डिलीवर करना किसके साथ? प्लानिंग इंजीनियर के साथ। और प्लानिंग इंजीनियर क्या करेगा? ये साइट डाटा पकड़ेगा इधर से, प्लानिंग का डाटा पड़ेगा इधर से, और इनको आपस में क्या करेगा? साइट वर्सेस प्लान। क्या बनेगा? इसको क्या बोलते हैं? साइट का डाटा वर्सेस प्लानिंग का डाटा, प्रोग्रेस रिपोर्ट। और ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या बताएगी आपको? दिस रिपोर्ट इज गोइंग टू गेट द स्टेटस ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको बताएगी आपका प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग फेज। You understand? This is the fourth phase. And the fifth phase is called closing phase. Final report. If your project is ended, now you are going to evaluate either my project is 100% completed, or if it is 100% completed, final report will be ready, handing over, taking over. If your project is not 100% ready, 70%, then you are going to report for the EOT. Extra time चाहिए भाई, कुछ मसले आ गए थे, project complete नहीं हुआ, you need extra time. So that is the project life cycle for construction management and oil and gas projects. If you understand it, please write in chat box area. मुझे बताइएगा आपको समझ आ गई इस पूरे साइकिल की।
ये प्राइमेरा P6 का यूज यहीं से शुरू हो जाता है, पूरी की पूरी प्लानिंग प्राइमेरा P6 पे होती है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, ये सारी की सारी ऑयल एंड गैस के प्रोजेक्ट्स भी ऐसे ही चलते हैं। ये कंप्लीट है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एरिया, इज दैट अंडरस्टैंडेबल? ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और ऑयल एंड गैस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ईपीसी प्लानिंग, उनका एक लाइफ साइकिल है। ओके, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग फॉर मेंटेनेंस गाइस। शटडाउन के अंदर भी प्राइमरी P6 की इंप्लीमेंटेशन है। कैसे? क्योंकि ये मेंटेनेंस के प्रोजेक्ट्स हैं। देखो, जब ये फैक्ट्री बन जाएगी, क्लोजिंग फेज आ गया, ये फैक्ट्री बन गई। नाउ दिस फैक्ट्री, दिस पेट्रोकेमिकल, दिस टेक्सटाइल, दिस बिल्डिंग, दिस रोड विल बी हैंडेड ओवर। आपकी बड़ी बड़ी ऑयल एंड गैस की रिफाइनरीज हैं, हैंड ओवर कर दिए जाते हैं, ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। अब यार इस ऑपरेशन को, रिफाइनरी जो है, इट्स नॉट लाइफ टाइम ये चलती रहेगी। यू नीड सर्टन 2 मंथ्स का शटडाउन आ जाता है, 1 महीने की शेड्यूल्ड प्लानिंग। आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, आप उसकी ट्यूनिंग करवाते हो। व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, दैट इज शट डाउन। बिकॉज मैन्युफैक्चरर हैज रिकमेंडेड दैट योर कार, होंडा वालों ने, किया वालों ने बताया भाई, योर कार नीड मेंटेनेंस आफ्टर 1 मंथ। द सेम थिंग योर प्लांट्स विच यू कैन सी अराउंड योर एरिया, अराउंड योर सिटी, जहां पे मेंटेनेंस है, 1 साल में 2 महीने 15 दिन के लिए प्लांट विल बी शट डाउन। आपको उसके बॉयलर, उसके टैंक्स, एवरीथिंग विल बी रिप्लेस्ड, ग्रीसिंग विल बी डन टू मेक श्योर द रिलायबिलिटी। ऐसा ही है कि नहीं जो मेंटेनेंस वाले हैं? तो वो जो 15 दिन का फेज है, जो 2 महीने का फेज है, जो 6 महीने का फेज है, दैट इज कॉल्ड शट डाउन, टर्न अराउंड। क्या होता है इसमें, ये देख लें। ये टर्न अराउंड थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि वो ये होता है जी मेरे भाई, इसका फेज 1 ये है प्लानिंग। आपका फेज 1, जब आपने शट डाउन करना ना, 1 साल पहले ये शुरू हो जाएगा। 1 साल पहले की बात बता रहा हूं। आप लोग फैक्ट्री के अंदर परमानेंट जॉब्स हैं एज अ प्लानिंग इंजीनियर। 12 मंथ्स बिफोर फेज 1 इज गोइंग टू स्टार्ट, फेज 1 इज गोइंग टू स्टार्ट 12 मंथ्स बिफोर। ओके, क्या होता है यहां पे? प्रिलिमिनरी वर्क, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि यार काम क्या हो रहा है। मतलब 12 महीने बाद हमने क्या काम करना है, डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट। फिर भाई 8 महीने पहले आपकी डिटेल प्लानिंग शुरू हो जाती है। यहां पे आपके पास रॉ डाटा होता है, यहां पे आपके पास डिटेल, ये उसका प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है। 8 महीने पहले आपकी डिटेल प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, आप एक प्लान बनाते हो। यहां पे आपके पास रॉ डाटा है, क्या क्या है, जैसे बॉयलर ठीक करना है, रिएक्टर ठीक करना है, रिफाइनरी का कौन कौन सा इक्विपमेंट है, यहां पे आप उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हो। यहां पे 3 महीने पहले आप उसकी सही तरीके से प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना शुरू कर देते हो प्राइमरी P6 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। और यहां पे मेरे भाई आपके ऊपर टाइम आ जाता है, आप उसकी एग्जीक्यूशन करवाओगे। और यहां पे आपके पास एग्जीक्यूशन के बाद आप अपना प्लांट को दोबारा से फंक्शनल करते हो। यू अंडरस्टैंड, दैट इज हाउ इट विल वर्क अलोंग। अंडरस्टैंड, दैट इज द शट डाउन मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं। आपकी फैक्ट्री है, रिफाइनरी है, प्रोसेस डिपार्टमेंट इज वर्किंग देयर, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट इज वर्किंग देयर, रिलायबिलिटी, ऑपरेशन, प्लानिंग, मेंटेनेंस एंड वेयर हाउस। बट दिस प्लानिंग इंजीनियर इज द मेन, is going to coordinate with each and every department and going to gather that data. That is how Primavera P6 is going to work. As a planning engineer, you are going to work. You understand? यहां तक समझ आ गई? अब भैया ये प्लानिंग इंजीनियर को, एक ये पूरे प्रोजेक्ट की बात कर ले, मेंट ये मुट्ठी में करता है, अपने इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को डॉक्यूमेंट करता है। दैट गाय इज द मेन गाय हु इज गोइंग टू डील विद एवरीथिंग। नाउ आई एम गोइंग टू गाइड यू पीपल, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर आपने अपना प्लान कैसे करना है, जॉब कैरियर। आप फ्रेश इंजीनियर हो, सबसे पहले मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, प्लानिंग इंजीनियरिंग जॉब कैरियर के अंदर आना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्किल सेट। ठीक है, आप अपने करंट जॉब कैरियर के हिसाब से देख लें। आप कैरियर कोचिंग भी ले सकते हैं मेरे से, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ईपीसी प्लानिंग कंट्रोल भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये स्किल सेट सीखना है, अगर 5 साल बाद आप अपने आप को प्रोजेक्ट मैनेजर देखना चाहते हो। या फिर आप शट डाउन मैनेजमेंट का सीख लें स्किल सेट। ठीक है, बोथ थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। अगर आप मेंटेनेंस के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपको ये वाला स्किल सीखना चाहिए। और अगर आप प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर रहे हो साइट इंजीनियर के तौर पे, क्यूए की, तो देन यू शुड गो फॉर इट। आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, राइट? एंड फर्दर इफ यू हैव कंफ्यूजन यू कैन कंसल्ट विद मी। आफ्टर 1 और 2 इयर्स, अगर आप इनमें से कोई एक स्किल सीख लेते हो प्राइमरी P6 के साथ, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, सिर्फ सॉफ्टवेयर जरूरी नहीं है, आपको उसकी कंप्लीट एप्लीकेशन का पता होना चाहिए। यू अंडरस्टैंड?
उसके 1 साल के बाद आपने डिले एनालिसिस सीखना है। आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं यार 1 साल बाद मेरी सैलरी डबल हो जाएगी? ऐसे ही है ना, आप स्किल डबल क्यों नहीं करते? अगर आप स्किल डबल करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो है ना वो परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कंपनीज के अंदर आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो 1 साल के बाद आप मान लो कि आप यहां पे कह रहे हो कि मेरी 1 लाख रुपए सैलरी है, आप चाहते हो 1 साल के बाद 2 लाख हो जाए, तो ये स्किल ऐड कर लो। ये एडवांस लेवल की चीज है। मान लो कि आपका प्रोजेक्ट अगर टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे वो शटडाउन है चाहे वो ईपीसी प्लानिंग है, तो डिले एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू मेक योर रिस्क एनालिसिस कि किस तरीके से आपके प्रोजेक्ट में मसले आए, टू हेल्प यू कैसे आपने डिले एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है। फिर आप कहते हो यार इसके 1 साल के बाद मेरी सैलरी 4 गुना हो जाए, 8 लाख रुपया हो जाए। तो ऐसे नहीं सोचो, आप एक और स्किल ऐड कर लो जिसको हम बोलते हैं पीएमपी। ये आपने एंड पे ऐड करना है। अनफॉर्चुनेटली लोग पहले ऐड कर लेते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। एंड आफ्टर दैट यू विल बी डिफाइंड एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। ये 5 साल की स्किल लैडर है विच आई डिफाइन। अगर आप फ्रेश इंजीनियर हो, यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हेयर और हेयर। आफ्टर 5 to 6 years यू विल बी एलिजिबल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो कैरिंग 2 to 3 years ऑलरेडी एक्सपीरियंस, यस यू आर एलिजिबल टू लर्न दिस स्किल एंड आफ्टर 2 or 3 years add this certification and you will become a project manager। और अगर आप सीनियर लेवल इंजीनियर हो ना, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, ये पूरी की पूरी लैडर 1 साल के अंदर ये सारे स्किल सीखो एंड यू विल बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर। व्हाट यू नीड टू ऐड? यू नीड टू ऐड वैल्यूज। ये होता है यार मेरी सीवी नहीं बनी, मेरे रिश्तेदार मुझे हेल्प नहीं करते, मेरी किस्मत खराब है। कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन गेम, ब्लेम गेम से निकले बाहर। एड ऑफ द स्किल्स माय फ्रेंड, दीज आर द स्किल्स। लर्निंग इन 3 months, इन 1 year कैन सेव योर नेक्स्ट 30 years। ये आपका कंप्लीट जॉब कैरियर प्लान है। यू अंडरस्टैंड? एनीबडी कैन बिकम। प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर ऐसा नहीं होता सिविल इंजीनियर बनूंगा तो अलग से होगा, इलेक्ट्रिकल होगा तो अलग से होगा, मैकेनिक नहीं। दिस इज द सिंपल थिंग, सिंपल सेम कॉमन स्किल सेट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। राइट? यू अंडरस्टैंड? अब यहां पे आपको मैं एक चीज बताता चलूं कि अप्लाई फॉर जॉब्स। अब आपको सबसे बड़ा मसला क्या होता है यार, स्किल सीख लिया, अब क्या करूं? सबसे पहले तो आपने स्किल सीखना है। दैट इज व्हाट आई हैव शेयर विद यू, स्किल लैडर। ओके, स्किल लैडर को कंप्लीट करना है। स्किल लैडर इज देयर। आपको प्राइमरी P6 सीखना शुरू करना है, कंप्लीट जॉब उसके प्राइमरी P6 के साथ साथ ईपीसी ऐड कर लें या फिर शट डाउन ऐड कर लें। दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मार्केट के अंदर जो चलती है चीज वही चलानी है। अगर आप लिंक्डइन के ऊपर जाएंगे आप देखेंगे सिंपल P6 किसको नहीं चाहिए, उनको या तो ईपीसी चाहिए या एसटीओ चाहिए। एसटीओ शट डाउन टर्न अराउंड आउटेज को बोलते हैं। राइट? स्किल लर्निंग के साथ साथ अगली चीज क्या आपने ऐड करनी है? जॉब हंटिंग। जॉब हंटिंग कैसे? भाई कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी। कंपनीज लिस्ट क्या मतलब? यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर काम करने वाली कंपनीज हैं, जैसा कि केबीआर, केईओ, बैकटेल, एककॉम, एककॉन, जैकब्स, डेस्कॉन, श्लम्बर्जर, वेदरफोर्ड, हैलिबर्टन, एडनॉक, अरामको, पीडीओ, कुवैत ऑयल एंड गैस। बहुत सारी कंपनीज हैं। आपके पास एटलीस्ट 50 कंपनीज की लिस्ट तो होनी चाहिए। 50+ कंपनीज होनी चाहिए आपके पास जिनमें आपने अप्लाई करना है। कहां से आएंगी? लिंक्डइन भी आपको हेल्प कर सकता है, चैट जीपीटी भी आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है? आप यूज करते हो चैट जीपीटी? कमेंट्स में लिख के बताएं ना मुझे, कौन कौन बंदा करता है लिंक्डइन और चैट जीपीटी यूज? कमेंट्स में लिखें प्लीज। आई विल बी गाइडिंग यू। मैं अपने यूट्यूब का लिंक भी दे दूंगा। यू कैन फाइंड देयर लिंक्डइन को कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी को कैसे करना है। डोंट वरी। कंपनी लिस्ट होनी चाहिए आपके पास। पता ही नहीं है मंजिल का, वो एक है ना कि मंजिल का पता नहीं है, और मैं, वो एक गाना भी है, लेकर गलत पता, पता नहीं कौन सा पता लेकर निकला। आपके पास है ही नहीं कंपनीज। ठीक है? लिंक्डइन को यूज कर रहे हैं आप, साइन अप है, आपका प्रोफाइल है, दैट इज ग्रेट। बट मेरे भाई आपने लिंक्डइन को यूज करना सीखा? कैसे करना है, किस तरह से लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है? क्या आपके इर्द वही आपके यूनिवर्सिटी के 4 दोस्त ऐड हैं, कुछ लड़कियां ऐड कर ली? नो, नॉट लाइक दैट। यू हैव टू एटलीस्ट ऐड 1000+ पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग, सेटल्ड पीपल इन यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान। उनको गाहे बगाहे मैसेजेस करें, यूनिवर्सिटी के सीनियर्स को भी ऐड करें, लिंक्डइन को ऐड करें, वहां से कंपनीज का मैं भी गाइड करता हूं आपको। सो कंपनी लिस्ट होना चाहिए मेरे भाई, वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है? सीवी के साथ? नो, एटीएस सीवी के साथ। कैसे? व्हाट डज मीन बाय एटीएस सीवी?
करूंगा गाइड। एटीएस सीवी का मतलब क्या है, ये देखें। ये अभी मैं आप लोग ये देखें, ये मेरे पास ये लिंक्डइन है। ठीक है, आप लिंक्डइन पे मुझे ये देखें कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखें फॉर एग्जाम्पल, आज के सेशन के बाद आप करें कोशिश। ये देखें प्लानिंग इंजीनियर लिखें यहाँ पे, ये एक सर्च बार है, इस पे आप आके बहुत सारा ये प्लानिंग इंजीनियर लिखेंगे, सर्च करें एंड यू विल फाइंड लिंक्डइन के अंदर बहुत सारी जॉब्स। जॉब्स यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे क्लिक करेंगे यू विल बी फाइंडिंग पीपल हु आर वर्किंग इन दोज कंट्रीज। ये देखें मैं जॉब्स को क्लिक करता हूं एंड हेयर यू कैन फाइंड सऊदी अरेबिया, यू कैन फाइंड, यू कैन चेंज टू यूएई समथिंग लाइक दैट। यू कैन सी दिस चैट बॉक्स प्लीज, ये डैशबोर्ड नजर आ रहा है आपको? ऐसा ना हो मैं खुद ही काम कर रहा हूं, आप कहें यार नजर ही कुछ नहीं आ रहा। ये देखें प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलिंग इंजीनियर, WSP, वन ऑफ द बिग कंपनी, आपको कंपनीज की लिस्ट भी मिल जाएगी, अल्फनार समथिंग लाइक दैट। अब मैं आपको बता रहा हूं यहां से आप ये फिल्टर लाजमी यूज करें डेली बेसिस के ऊपर प्लीज एवरीबडी। ये देखो कितनी जॉब्स हैं, ये देखो सारी प्लानिंग इंजीनियर की जॉब्स हैं। एक तो ये, अच्छा ये मतलब क्या है, एटीएस सीवी का मतलब क्या है? देखो आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, क्या आप खाली अप्लाई कर रहे हो? नो माय फ्रेंड, 10,000 अदर पीपल आर आल्सो अप्लाइंग देयर। सो एचआर डजंट हैव दैट मच टाइम कि आपकी सीवीज को प्रिंट करके लिखे कि भैया किसको कॉल करनी है किसको, ये ऑटोमेटिकली कॉल ईमेल चला जाता है। कैसे? एटीएस सिस्टम बैठा हुआ है हर वेबसाइट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। कैसे? ये कंपनी देख रहे हो, इस कंपनी को क्या चाहिए? जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक इंजीनियर की ये चाहिए कि वो भाई कंप्रीहेंसिव प्रोजेक्ट शेड्यूल्स, ये कीवर्ड होना चाहिए आपकी सीवी के अंदर। इन टास्क, ये माइलस्टोन्स, ठीक है। आपकी सीवी के अंदर अगर इस जॉब के ऊपर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास आपकी सीवी के अंदर इस साइड पे आप सीवी अज्यूम कर लो, तो आपकी सीवी के अंदर प्रोजेक्ट शेड्यूल का कीवर्ड होना चाहिए कि आपको प्रोजेक्ट शेड्यूल आता है। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का कीवर्ड आना चाहिए। आइडेंटिफाइड डेविएशंस का कीवर्ड आना चाहिए। ठीक है। कोलैबोरेट विद प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, ये आपने अपनी सीवी के अंदर सारे कीवर्ड्स होने चाहिए। जो एटीएस सिस्टम है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा दोनों की कंपैटिबिलिटी को। अगर आपकी सीवी के अंदर वो कीवर्ड्स 80% से ज्यादा हैं, योर सीवी विल बी ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्टेड एंड विल बी लेबल्ड एट एटीएस सीवी। तो हमेशा जब भी किसी कंपनी के अंदर अप्लाई करना है, फर्स्ट यू नीड टू रेडीमेड, ये मैं पूरा टेक्निक बताता हूं लोगों को, और लोगों को इससे 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। वो लोग जो कहते हैं मुझे अच्छा रिप्लाई नहीं देता, भैया वो पता कौन से लोग हैं? जो सीवी को समझ बैठे हैं, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V छापा लगा के अप्लाई कर देना है और फिर दुआ करनी है। ऐसा नहीं है, खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, ये याद रखना। ऐसा मत समझ लेना कि नहीं एक दिन आएगा, नहीं आएगा वो दिन। वो बहुत सारे और लोगों का होके चला जाएगा और आप बैठे रहेंगे यार मैंने बहुत गलती की यार इंजीनियरिंग करके। ठीक है, बाबा जी के पास जाएंगे, तवीज लिखवाएंगे, ये करेंगे, यार किसी की नजर लग गई, किसी ने मेरे पे तवीज तो नहीं की है, नहीं भाई, हमने खुद ही कुछ नहीं किया। यू अंडरस्टैंड? ये बहुत सिंपल सी चीजें। आई हेल्प पीपल इन पेड सेशंस एंड आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट दिस। करेंगे? आज प्राइमरी P6 पे जाके प्लानिंग इंजीनियर या कोई भी इंजीनियर लिख के इसको पढ़ेंगे, 5 जॉब्स को पढ़ेंगे, कीवर्ड्स निकालेंगे। हर जॉब एड, हर एक लाइन में एक कीवर्ड है, वो आपकी सीवी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में होना चाहिए। लेकिन फेक काम नहीं करना, ये भी प्रॉमिस करना है। फेक काम पता क्या होता है? बहुत सारे लोग आते हैं कि सर जी पैसे ले लें, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, इट इज फेक। कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं करनी, दैट इज द लेसन लर्न आई एम गिविंग यू। डिसऑनेस्टी करेंगे ना तो आप कामयाब नहीं हो सकते, ये लिखा। अब लोग पता क्या करते हैं, इस ट्रिक को यूज करके सीवी बना के ना अप्लाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, इनिशियल इंटरव्यू आ जाएगा, टेक्निकल इंटरव्यू में सेटिस्फाई। स्किल लाजमी सीखना है भाई, इसको सीख कर करेंगे तो फिर ऑनेस्टी है। यू अंडरस्टैंड? फेक वो काम नहीं करना। फेक काम आई नेवर सपोर्ट, नो बडी सपोर्ट। इवन आपको खुद पता चल जाएगा शॉर्ट कट की हमेशा थोड़ी उम्र होती है, वेरी शॉर्ट एज। यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज थिंग यू हैव टू इंप्लीमेंट। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू इंप्लीमेंट द थिंग्स। ये चीजें आपने करनी है। एक तो चैट जीपीटी के ऊपर जाके जॉब एड कॉपी करके ले जाएं, चैट जीपीटी को बताएं कि मुझे इस तरह की एटीएस सीवी बना दो। वो जो लिंक्डइन के ऊपर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको कॉपी करके चैट जीपीटी पे चले जाएं, उसको कहें मेरी इस तरह से एक एटीएस सीवी बना दो, बन जाएगी। उसको वर्ड में लेके आए, पीडीएफ के अंदर चेंज करके कंपनी के अंदर अप्लाई कर दें, दैट्स इट, हो जाएगा काम। जॉब स्किल भी हो गया, कंपनीज की लिस्ट भी आ गई, लिंक्डइन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एटीएस सीवी होना चाहिए और चैट जीपीटी और नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या है? आपके जानने वाले होने चाहिए लिंक्डइन के थ्रू। 1 2 3
4 5 ये काम अगले 2 से 3 महीने में कर लो। आई कैन गारंटी यू कि 100% गल्फ रीजन के अंदर जॉब मिल जाएगी, गल्फ रीजन के अंदर 100% गुड सैलरी। अब प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे जाओगे तो कितनी सैलरी मिलेगी? कितनी सैलरी मिलेगी? अगर आप फ्रेशर हो, फ्रेश इंजीनियर भी प्लानिंग इंजीनियर बन सकता है, ऐसा नहीं है कि आप, बहुत सारे लोग अभी सवाल पूछेंगे, सबके सवालों का जवाब दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई, बन सकते हो आप प्राइमरी, प्रॉपर उसके साथ स्ट्रैटेजी के साथ सीखो। यूए के अंदर भी आप जा सकते हो 2 से 3 महीने की, और आप फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर सकते हो। फ्रीलांसर के तौर पे तो जितना आप आराम से 500 to 1000 डॉलर कमा सकते हो आराम से। वन, नॉट 100, $1000। लेकिन आई गिव यू द रियलिस्टिक बेस। फ्रीलांसर का मतलब क्या होता है पता है? आप घर से बैठ के यूके, यूएसए, कनाडा बेस्ड फर्म्स को लिंक्डइन, अपवर्क के ऊपर बैठ के प्राइमरा P6 के शेड्यूल बना के दो, और $250 से सबसे कम, जो कि मैं कहता हूं कि हंस के हो जाता है, इतना काम करके दे फ्रेशर इंजीनियर। और अगर आपकी यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जॉब होती है तो आप आराम से 4000 से 5000 दिरहम की सैलरी ले सकते हो। ये आपकी जॉब सैलरी है, एडी, रियाल और दिरहम्स, ठीक है, पर मंथ। ये फ्रेश इंजीनियर का है। मिड कैरियर लेवल इंजीनियर जो है वो मेरे भाई, क्योंकि इस ट्रेनिंग को लेने के बाद अगर आप ऑलरेडी साइट पे काम कर चुके हो तो मिड कैरियर लेवल प्लानर के तौर पे काम करोगे, राइट? तो फ्रीलांसर के तौर पे ज्यादा पैसे भी कमा सकते हो, $1000 तक भी, इससे भी ज्यादा कमा सकते हो। और अगर आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर जाना चाहते हो तो ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रॉपर तरीके से सीखने के बाद 7,000 to 10K तक आप आराम से रियाल कमा सकते हो। और इसके आगे जो सीनियर लेवल इंजीनियर है उसका 1-2 साल के बाद सीनियर लेवल इंजीनियर के तौर पे आप काम करोगे। सो दोज गाइज आर अर्निंग 15,000 to 20,000 रियाल पर मंथ। मैनेजेरियल के तौर पे 25,000 से 30,000। वो उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाता है, फिर चीजें ऐड होनी शुरू हो जाती हैं। सो दैट्स इट, दैट्स व्हाट प्लानिंग इंजीनियर्स आर अर्निंग। So thank you very much for today's webinar. That's all. I have guided you about planning engineering skill set. आप लोगों को लाजमी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को ऐड करना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी रिमेन एज अ सिंपल साइट इंजीनियर, लो सैलरी जॉब कैरियर। प्लानिंग इंजीनियरिंग को ऐड करेंगे तो दिस इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब कैरियर। और सेकेंडली जॉब हंटिंग के बारे में बताया, विच थिंग हेल्प यू अ लॉट एज एन अवेयरनेस एज अ इंजीनियरिंग जॉब कैरियर। वो लाजमी कमेंट्स के अंदर लिखिएगा, एवेलुएट लाजमी कीजिएगा कमेंट्स के अंदर, सो दैट इट कैन हेल्प मी आउट टू मोटिवेट मी, कि मैं, मुझे अगली दफा एक नई एनर्जी के साथ वेबिनार कंडक्ट करने का मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।